Hello students, welcome you all to Extra Marks. In today's session, we will be discussing the chapter Sexual Reproduction in Flowering Plants. तो इसका आज हम रिवीजन करने वाले हैं. आज हम most important questions from this chapter we are going to discuss. We will also discuss the previous year questions. So इसका जो वेटेज रहा है, अगर मैं लास्ट 5 ईयर की बात करूं तो हर साल 3 to 5 क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछे जाते हैं. सो इन क्लास 12 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड जेनेटिक्स का सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है ऑब्वियसली, बट आज हम केवल इस चैप्टर की बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की इन फ्लावरिंग प्लांट्स. सो लेट अस सी द ट्रेंड एनालिसिस. ये 5 ईयर का डेटा है. एज यू कैन सी दीज ऑल आर द टॉपिक्स इन दिस चैप्टर. इंट्रोडक्शन है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, देन पॉलिनेशन, डबल फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. तो सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करती हूँ इस चैप्टर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, दैट इज फ्रॉम द टॉपिक पॉलिनेशन. पॉलिनेशन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं. एज यू कैन सी टोटल 8 क्वेश्चन इन द लास्ट 5 ईयर. सबसे ज़्यादा 2024, 23 और 22 में पूछे गए. मैक्सिमम 2 क्वेश्चन इस छोटे से टॉपिक से आते हैं, दैट इज़ दी पॉलिनेशन. इसके बियॉन्ड अगर मैं बात करूँ तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी हमारा इंपॉर्टेंट ही है, जहाँ से टोटल 3 क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं लास्ट 5 ईयर में. ठीक है. इंट्रोडक्शन जो स्टार्टिंग में जो स्मॉल सा पैराग्राफ दिया है, जो फ्लावर्स के बारे में बताया गया है, उससे केवल एक ही क्वेश्चन आया है अभी तक. एंड डबल फर्टिलाइजेशन से भी लास्ट 5 ईयर में 1 क्वेश्चन ही आया है. उससे पहले भी पूछे गए हैं, ऐसा नहीं है, बट दिस इज योर 5 ईयर डेटा. ठीक है. हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन विच इज बेस्ड ऑन द इंट्रोडक्शन पार्ट, राइट. सो हियर द क्वेश्चन इज सेइंग among the terms listed below, those that are not technically correct names of a floral whorl are. So I hope you all are aware of the 4 whorls of a flower, right? So बाहर से अंदर की तरफ अगर हम जाएं, so outermost is the calyx, then we have corolla, androecium and the gynoecium. ठीक है. सो ये 4 वॉल्स होती हैं फ्लावर में, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम. एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम जो हैं ये रिप्रोडक्टिव वॉल्स है, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब यहाँ पे टेक्निकली करेक्ट नेम कौन सा नहीं है. एंड्रोशियम इज करेक्ट ऑफ कोर्स, राइट. देन कोरोला इज ऑल्सो देयर. कार्पिल एंड सेपल ये दोनों ही हमारे करेक्ट, टेक्निकली करेक्ट नहीं है. कैलिक्स की यूनिट को हम कहते हैं सेपल, and corolla unit is called petal. Androecium unit is stamen and gynoecium is made up of pistil or carpel. Okay, so here your answer will be first and third are correct, so answer will be second and fourth. Option C is our correct answer. Moving ahead now we will be having the questions from the male reproductive organ part. The first question is, anther is generally what? So all of you are aware of stamen is having an anther and the filament. Now when you cut the transverse section of an anther, what you will observe? You will observe at every corner we have microsporangia. At every corner we have microsporangia. So this anther is tetrasporangiate, right? So answer will be option C, that is tetrasporangiate. Moving ahead now, the given diagram shows microsporangium of a mature anther. You have to identify A, B and C here. So let us draw again. So जब हम ट्रांसफर सेक्शन देखते हैं, बाहर से अंदर की तरफ अगर हम मूव करेंगे, so outermost layer here is the epidermis, right? Then we have second layer, that is the endothecium. Two to 3 layers are present of the middle layers. These all are middle layers. And the
the innermost, which is very, very, very important, that is the tapetum. This layer is your tapetum. So moving ahead now, what is asked in the question? You have to tell what is A, B and C. So the second layer here is the endothecium. The third layer here is the middle layers. And the innermost is the tapetum. So our answer will be option C. A is endothecium, B is middle layers and C is your tapetum. Okay, moving ahead to the next question. The outermost and the innermost wall layers of the microsporangium in and anther are respectively what? तो सीधे क्वेश्चन पूछा है कि बाहर वाली लेयर और अंदर वाली लेयर को हम क्या कहते हैं. So right now we have talked about epidermis सबसे बाहर है, then endothecium है, middle layers हैं, and then we have tapetum. So as per the question, the outermost or the innermost layer will be the epidermis and the tapetum. So answer will be option D, epidermis and your tapetum. Moving to the next question, which of the following statements regarding the structure of microsporangium are correct? So microsporangium से related कुछ points हमें दिए हुए हैं. 3 statements are given to you. You have to identify which one is correct. So microsporangium is generally surrounded by 4 wall layers. अभी हमने देखा कि यहाँ पे 4 layers होती हैं. सबसे बाहर एपी, एंडो, मिडिल लेयर एंड टेपेटम. Of course this is true. Outer 3 layer perform the function of protection and dehiscence of the anther. राइट. सो बाहर की जो तीनों लेयर हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम एंड मिडिल लेयर्स. एंडोथीशियम मेजरली रोल प्ले करती है, बट इन योर एनसीईआरटी, एज पर एनसीईआरटी, ये तीनों लेयर जो है मिलके काम कर रही हैं. दे हेल्प इन द डेहिसेंस ऑफ द एंथर. तो यहाँ ये भी हमारा सही है. सेल्स ऑफ टेपेटम अंडरगो मियोसिस एंड प्रोड्यूस माइक्रोस्पोर टेट्राड. सो जो इनरमोस्ट लेयर है टेपेटम की, द इनरमोस्ट लेयर टेपेटम is actually multinucleate, right? इस लेयर में we have more than 1 nuclei. कैरियोकाइनेसिस हो गई है लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हुई है, तो ये लेयर हमारी मल्टीन्यूक्लिएट होती है. इसका काम क्या है? इसका काम है जो माइक्रोस्पोर डेवलप हो रहे हैं उनको नरिशमेंट प्रोवाइड कराना. So cells of the tapetum undergo meiosis? No, it will not undergo meiosis. This is wrong. And produce microspore tetrad. So this statement here is wrong. So first is correct and second is correct. Answer will be option A. Moving ahead, this question came in your 2025 NEET exam. Question क्या है? Given below are 2 statements. One is labeled as assertion and the other one is labeled as your reason. So assertion reason based ये question है. Assertion क्या कहता है? Cells of the tapetum possess dense cytoplasm and generally have more than 1 nucleus. तो अभी हमने ये देखा था कि टेपेटम की जो लेयर है उसमें जो सेल्स हैं उसमें more than 1 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं. सो यहाँ पे ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू होता है. रीजन को पढ़ते हैं. रीजन क्या कह रहा है? प्रेजेंस ऑफ मोर देन 1 न्यूक्लियस इन द टेपेटम इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ द नरिशिंग डेवलपिंग माइक्रोस्पोर मदर सेल. ओके, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि यहाँ पे जो टेपेटम है उसमें मोर देन 1 न्यूक्लियस होने की वजह से उसकी नरिशमेंट की कैपेसिटी बढ़ जाती है ऑफ कोर्स, और ये नरिशमेंट प्रोवाइड करा रही है हमारी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स को या फिर माइक्रोस्पोर्स को जो डेवलप हो रहे हैं. तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारे सही हैं. एंड रीजन जो है हमारा वो एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को, है ना, क्योंकि टेपेटम के लेयर में मोर देन 1 न्यूक्लियाई हैं. व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दैट? बेनिफिट यही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा नरिशमेंट प्रोवाइड करा सके माइक्रोस्पोर मदर सेल्स को या फिर माइक्रोस्पोर्स को. सो आंसर विल बी ऑप्शन ए. बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज एक्सप्लेनिंग योर असर्शन. नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. सो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? आइडेंटिफाई द पार्ट्स लेबल्ड एज ए, बी, सी एंड डी इन द गिवन figure. So this is your ovule. Ovule को हम क्या कहते हैं? Megasporangium, right? So we have to identify here A, B, C and D. ठीक है? तो let us draw the diagram of an ovule. Ovule is
योर मेगास्पोरेंजियम. प्लीज रिमेंबर दिस. ठीक है. सो स्टॉक ऑफ द ओव्यूल इज कॉल्ड फ्यूनिकल. Here we have a micropylar end या micropylar pole. This is the chaliceal pole. These are integuments. Here we have nucellus, and at the micropylar end, towards micropylar end, I can say we have an embryo sac. Embryo sac. Now let us see the labeling. A here is the micropylar end. B here is the nucellus. D is your embryo sac, sorry, C is your embryo sac, and D is your chaliceal end. It is a chaliza. So answer is your option D. Moving ahead to the next question. This question came in the NEET 2025 exam. How many meiotic and mitotic division need to occur for the development of a mature female gametophyte? एक mature female gametophyte बनाने के लिए कितने मियोटिक और कितने माइटोटिक डिवीजन होंगे? सो लेट अस सी. सो हियर वी हैव अ मेगास्पोर मदर सेल, है ना. मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस करती है. मियोसिस 1, देन 2 मेगास्पोर्स बन जाएंगे. मियोसिस 2 होगी एंड वी हैव 4 मेगास्पोर्स. ठीक है. सो मियोसिस डिवीजन हो गया 1. मियोसिस एक टाइम हो गई. 3 डीजेनरेट कर जाएंगे एंड ओनली 1 रिमेन फंक्शनल. अब जो फंक्शनल मेगास्पोर है, दिस फंक्शनल मेगास्पोर, इसका जो न्यूक्लियस है दैट स्टार्ट डिवाइडिंग. सो क्या होगा? कैरियोकाइनेसिस होगी. एक न्यूक्लियस से 2 बनेंगे, देन वी हैव 4, फाइनली वी हैव 8 न्यूक्लियस इन अ सेल. सो कैन यू सी द माइटोटिक डिवीजन हियर? 1, 2 and 3. सो 3 टाइम्स माइटोटिक डिवीजन हुआ है और 1 टाइम मियोसिस हुई है. सो आंसर विल बी 1 मियोसिस एंड 3 माइटोसिस. ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर. अगेन वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम नीट 2025 only. Given below are 2 statements, that is assertion and reason. Assertion is saying a typical unfertilized angiosperm embryo sac at maturity is 8 nucleate or 7 celled. So embryo sac का डायग्राम NCERT में गिवन है. यहाँ पे 3 एंटीपोडल सेल्स होते हैं, एक एग सेल है, 2 सिनर्जिड्स हैं, एंड इन द सेंटर वी हैव अ central cell having polar nuclei. So total nuclei here will be 8 and how many cells are there? Cells are 7. So ये जो statement है that is true. The egg apparatus has 2 polar nuclei. This is wrong. किस में है 2 polar nuclei? Central cell में है, egg apparatus में नहीं है. So assertion true है हमारा और reason है हमारा false. Moving to the questions based on the next topic, that is the pollination. Very important topic. Now let's see the first question from the NEET 2025 only. Assertion and reason based question है. Both wind and water pollinated flowers are not very colorful and do not produce nectar. तो जो wind और water से pollinate हो रहे हैं उनको ज़रूरत ही नहीं है कि वो colorful हों या nectar produce करें, क्योंकि उनके पास कोई visit करने तो आ नहीं रहा है. So this is true. रीजन क्या कह रहा है? द फ्लावर्स प्रोड्यूस एनॉर्मस अमाउंट ऑफ पॉलन ग्रेन्स इन विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स. तो यहाँ पे ना जो पॉलन ग्रेन्स बनेंगे वो काफ़ी सारे बनने वाले हैं, क्योंकि यू नो दिस इज जस्ट अ हिट एंड ट्रायल मेथड, है ना, कि पॉलन गया, स्टिग्मा तक पहुँचा कि नहीं पहुँचा, तो प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा पॉलन बनाता है. सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू हियर, बट रीजन इज नॉट एक्सप्लेनिंग द असर्शन. सो आंसर विल बी ऑप्शन. Answer is option B. Moving to the next question. A particular species of a plant produces light non-sticky pollen grain in large number. ठीक है, light है, non-sticky है और बहुत सारे pollen grains बन रहे हैं. ठीक है, स्टिग्मा कैसा है? लॉन्ग है और feathery है, जिससे कि वो pollen को कैच कर सके. These modifications facilitate pollination by, what do you think? So answer will be wind, water or insect.
ऑफ कोर्स इट इज विंड पॉलिनेशन, क्योंकि जो विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स होते हैं उसमें इनॉर्मस अमाउंट ऑफ पॉलन ग्रेन्स बनते हैं, और जो पॉलन ग्रेन होता है दैट इज लाइट इन वेट, कि वो बहुत लंबे डिस्टेंस तक ट्रेवल कर सके। इट इज नॉन स्टिकी, स्टिकी होता है तो वो इंसेक्ट से चिपक सकता है। इट इज नॉन स्टिकी, जो स्टिग्मा है वो फैदरी क्यों है, जिससे वो पॉलन को कैच कर सके। मूविंग अहेड, from among the situation given below, choose the one that prevents both autogamy and geitonogamy. तो यहाँ पे हमें कुछ कंडीशंस दी गई हैं, हमें ये बताना है कि कौन सी कंडीशन दोनों को ही रोकेगी। ऑटो भी नहीं हो रहा, गिटेनोगैमी भी नहीं हो रही। ऑटोगैमी और गिटेनोगैमी में डिफरेंस क्या है? ऑटोगैमी में सेम फ्लावर का पॉलन सेम फ्लावर को ही पॉलिनेट कर देता है ना, पॉलन उसी को पॉलिनेट कर देगा, अपने ही फ्लावर को। गिटेनोगैमी में भी हमारा जो पॉलन है सेम प्लांट पे ही जा रहा है बट ऑन डिफरेंट ब्रांच, है ना। तो हमें यहाँ पे एजेंसी की ज़रूरत होती है, लेकिन प्लांट सेम ही स्पीशीज़ का है, सेम ही प्लांट बॉडी का है, तो यहाँ पे जो है वेरिएशन नहीं आते हैं। सो गिटेनोगैमी इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन क्या कह रही है कि कौन सा रोकेगा, तो हमारा जो अगर मोनोशियस कंडीशन है, मोनोशियस मतलब एक ही प्लांट पे मेल और फीमेल फ्लावर्स दोनों ही हैं, तो वहाँ पे गिटेनोगैमी हो सकती है। प्लांट कैसा होना चाहिए? डायोशियस होना चाहिए, राइट। द डायोशियस प्लांट बियरिंग ओनली मेल और फीमेल फ्लावर्स, दिस विल बी योर आंसर, है ना। वी हैव अ डायोशियस कंडीशन लाइक इन पपाया, मेल फ्लावर्स अलग प्लांट पे हैं और फीमेल फ्लावर्स हमारे अलग प्लांट पे होते हैं। मूविंग अहेड नाउ, read the following statement and choose the option which is true for them. Hydrophily is limited for about 30 genera, mostly dicots. तो यहाँ पे dicots लिखा है, हमें हर लाइन एनसीईआरटी की ध्यान से पढ़नी है। एनसीईआरटी में गिवन है monocots, not dicots. So this is wrong here. Presence of a single ovule in each ovary is an adaptation of anemophily. Anemophily का मतलब हो गया wind pollination. सिंगल ओव्यूल इन एन ओवरी, ओवरी के अंदर एक ही ओव्यूल, ये अडेप्टेशन है किसकी? विंड पॉलिनेशन की। सो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो जाता है। सो ए इज इनकरेक्ट बट बी इज करेक्ट हियर। मूविंग अहेड, कंसीडर 3 प्लांट्स विद द फॉलोइंग मोड्स ऑफ पॉलिनेशन। अब ये कॉम्पिटिशन बेस्ड क्वेश्चन है, सीबीएसई अब ऐसे टाइप के क्वेश्चंस देने लगा है। प्लीज फोकस ऑन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। Plant P autogamy, plant Q xenogamy, plant R geitonogamy. Xenogamy is cross pollination. Xenogamy is cross pollination और ऑटो और गिटेनो मैंने आपको बता दिया। ऑटो इज सेल्फ, गिटेनो का मतलब होता है नेबर मैरिज, है ना, पास में ही फ्लावर है, दूसरी ब्रांच पे है। सो ये हमें 3 प्लांट हमें कंसिडर करने हैं विद द फॉलोइंग मोड्स ऑफ पॉलिनेशन। विच ऑफ द अबव केस इज और आर मोस्ट लाइकली टू नॉट शो जेनेटिक वेरिएशन। अब कैसे में जेनेटिक वेरिएशन नहीं आएंगे, तो जिसमें सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है ऑटो एंड गिटेनो, सो आंसर विल बी ऑप्शन सी, पी एंड आर। मूविंग अहेड नाउ, दिस क्वेश्चन केम इन नीट 2015. Which of the following are important floral rewards to the animal pollinators? You have to tell the floral rewards. Animal flower के पास क्यों आ रहा है, उसको कुछ मिल रहा है ना। द रिवॉर्ड विच दिस इंसेक्ट इज गेटिंग, व्हाट इज दैट रिवॉर्ड? क्या मिल रहा है उसको? नेक्टर और एडिबल पॉलन ग्रेन्स। सो पॉलन ग्रेन्स उसे खाने को मिल रहे हैं, नेक्टर मिल रहा है। दैट इज वाई द एनिमल्स आर विजिटिंग द फ्लावर्स। मूविंग अहेड, while planning for an artificial hybridization program involving dioecious plant, तो plant is dioecious, तो यहाँ पे 2 बॉडी है, ठीक है, एक पे हमारे फीमेल फ्लावर्स हो रहे हैं और दूसरे पे हमारे मेल फ्लावर्स हैं। तो ये मेल प्लांट है, ये हमारा फीमेल प्लांट है। Which of the following steps would not be relevant in generally? तो कौन सा रेलेवेंट नहीं होगा? हमें क्या करना है? हमें करना है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पे जब प्लांट ही डायोशियस है ना, मेल और फीमेल अलग अलग प्लांट पे ग्रो हो रहे हैं, 2 प्लांट बॉडी हैं, तो हमारे को इमैस्कुलेशन करने की ज़रूरत नहीं होगी। आंसर विल बी ऑप्शन सी। इमैस्कुलेशन मतलब रिमूवल ऑफ योर स्टेमन्स। नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द डबल फर्टिलाइजेशन। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन केम इन नीट 2019. व्हाट इज द फेट ऑफ द मेल गैमी डिस्चार्ज इन द सिनर्जिड?
तो जो मेल गैमीट डिस्चार्ज हुआ है सिनर्जिड में उसका फेट क्या है? सो जो मेल गैमीट डिस्चार्ज हो रहा है एक तो जाके फ्यूज हो जाएगा एग से, वन विल फ्यूज विद द एग एंड अदर विल फ्यूज विद द पोलर न्यूक्लियाई, अदर विल फ्यूज विद द पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। सो आंसर विल बी वन फ्यूज विद द एग एंड अदर फ्यूजेस विद द पोलर न्यूक्लियाई। डबल फर्टिलाइजेशन इज व्हाट? सो डबल फर्टिलाइजेशन क्यों कह रहे हैं? डबल मतलब दो जगह फर्टिलाइजेशन हो रहा है। सो वन इज द ट्रिपल फ्यूजन एंड अदर वन इज योर सिनगैमी। सिनगैमी में क्या हो रहा है? वन मेल गैमीट फ्यूजेस विद द फीमेल गैमीट एंड ट्रिपल फ्यूजन में मेल गैमीट फ्यूजेस विद द पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई पहले से फ्यूज हो चुके होते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस बन चुके होते हैं, उससे फ्यूजन हो जाता है। सो आंसर विल बी डी, सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ फ्लावरिंग प्लांट अ टेट्राप्लॉइड मेल प्लांट इज क्रॉस पॉलिनेटेड विद अ डिप्लॉइड फीमेल प्लांट। सो मेल प्लांट यहाँ पे टेट्राप्लॉइड है, 4n कंडीशन है, ठीक है, और फीमेल प्लांट हमारा डिप्लॉइड है यानी कि 2n कंडीशन है। फाइन, व्हाट वुड बी द प्लॉइडी ऑफ द एंडोस्पर्म एंड द एम्ब्रियो डेवलप्ड? एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो की हमें प्लॉइडी बतानी होगी। एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो, फाइन। तो जब हम मेल की बात करते हैं, मेल प्लांट हमारा टेट्राप्लॉइड है तो इसके जो गैमीट्स होंगे वो डिप्लॉइड होंगे, और फीमेल प्लांट हमारा डिप्लॉइड है तो इसके गैमीट होंगे हैप्लॉइड। तो गैमीट का जो फ्यूजन हो गया 2n और n मिल गया हमारा 3n, ट्रिप्लॉइडी कंडीशन 3n। अब एंडोस्पर्म की बात करते हैं। एंडोस्पर्म में क्या है? दो पोलर न्यूक्लियाई पहले से ही हैं। सो n प्लस n कंडीशन पहले से थी और 2n और आ गया तो कितने हो गए? 4n। सो आंसर विल बी 4n and 3n, tetraploid and triploid. So answer is your B. In an embryo sac, the cells that degenerate after fertilization are, embryo sac बन गया है ना। अब जो सेल्स हैं फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो डीजनरेट हो जाएंगे, जिनका कोई अब यूज नहीं है, दे विल बी योर सिनर्जिड्स एंड योर एंटीपोडल सेल्स। सिनर्जिड्स एंड एंटीपोडल सेल्स डीजनरेट हो जाते हैं आफ्टर दी फर्टिलाइजेशन। Moving ahead, now we will talk about the last topic of this chapter, that is the post fertilization events. Fertilization हो गया, उसके बाद क्या हो रहा है? Endosperm and your embryo बनेगा। So let us see the first statement here. Statement based question है। Statement A है हमारा, residual and persistent nucleus in a seeds of a black pepper is called perisperm. So perispermous seeds कौन से होते हैं? जिनमें nucleus रह जाता है। NCERT में this is given and your examples are ब्लैक पेपर एंड योर बीट। स्टेटमेंट बी क्या कह रहा है? ऑर्किड फ्रूट कंटेन्स द थाउजेंड्स ऑफ टाइनी सीड्स। सो ऑर्किड में भी बहुत सारे सीड्स होते हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे ट्रू हैं। सो आंसर विल बी ऑप्शन सी, बोथ द स्टेटमेंट्स ए एंड बी आर करेक्ट। नेक्स्ट, इन द ग्रास फैमिली द कॉटिलेडन इज कॉल्ड। सो ग्रास फैमिली में एक ही कॉटिलेडन होता है। ग्रास हमारा मोनोकॉट प्लांट है और उस कॉटिलेडन को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं उसको शूटेलम। सो आंसर इज योर ऑप्शन सी, शूटेलम। नेक्स्ट इज योर मल्टीपल स्टेटमेंट्स आर गिवन टू यू। ये नीट में आप देख रहे हो पैटर्न कि मल्टीपल स्टेटमेंट असर्शन रीजन क्वेश्चंस काफ़ी आ रहे हैं, इसीलिए सॉल्व करने में काफ़ी टाइम लगने लगा है बायोलॉजी पार्ट को। तो लेट अस रीड। आपको इसके लिए एनसीईआरटी लाइन टू लाइन आनी चाहिए। रेजिडुअल परसिस्टेंट न्यूक्लियस इज कॉल्ड पेरिस्पर्म। यस, दिस इज ट्रू। Thalamus contribute to the formation of false fruit in mango. No, mango तो true fruit है, so this is wrong. All angiosperms produces more than one embryo in their seed. सारे angiosperm में ऐसा हो रहा है? नहीं। Double fertilization occurs in embryo sac and involves two fusion events. Double fertilization में दो fusion events होते हैं, so ये हमारा true हो जाता है। So first and fourth true है, so answer will be दो सही थे, दो गलत थे। नेक्स्ट इज योर मैच द कॉलम टाइप ऑफ क्वेश्चन। चलिए मैच करते हैं। कोलियोराइजा। कोलियोराइजा क्या है हमारी? ये हमारी जो रेडिकल होती है उसके ऊपर एक कवरिंग होती है, दैट इज द कोलियोराइजा, एंड कोलियोप्टाइल प्लूम्यूल के ऊपर कवरिंग होती है, ठीक है। सो कवरिंग ऑफ अ रेडिकल इज योर कोलियोराइजा। शूटेलम क्या थी? सिंगल कॉटिलेडन को कहते हैं। पेरिकार्प क्या है? फ्रूट की वॉल होती है। बहुत सारे फ्लैशी फ्रूट में एज यू हैव सीन ये डिवाइड हो जाती है एपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प में। तो ये हमारी फ्रूट की वॉल है। पेरिस्पर्म इज अ परसिस्टेंस न्यूसिलस। सो आंसर विल बी ऑप्शन सी। यू कैन ट्राई इट अगेन। मूविंग अहेड नाउ,
विच वन इज द करेक्ट डेवलपमेंटल सीक्वेंस फॉर अ डाइकोट एम्ब्रियो। तो जब एम्ब्रियो बन रहा है ना, जाइगोट बन गया, इस जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, तो जो पहला एम्ब्रियो बनेगा दैट विल बी ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो, है ना, ग्लोब्यूलर शेप का एम्ब्रियो होता है। उसके बाद हमारी हार्ट शेप का एम्ब्रियो आ जाता है, एंड देन वी हैव मैच्योर एम्ब्रियो दैट विल बी समवॉट हॉर्स शू शेप, ठीक है। सो आंसर विल बी ग्लोब्यूलर, देन हार्ट शेप, एंड फाइनली अ मैच्योर एम्ब्रियो. Then next question, the cells of the endosperm of angiosperm have 24 chromosome. What will be the number of chromosome in the gametes? So endosperm में दिया हुआ है ना, endosperm में दिया है कितने क्रोमोसोम है? 24. So 3n कंडीशन है, ट्रिप्लॉइड कंडीशन 24. अब गैमीट्स में आपको बताना है, so you have to tell n, 24 divided by 3, okay, so answer will be 8. 3 8 are 24. Now ये है हमारा नीट 2023 का क्वेश्चन. इन एंजियोस्पर्म द हैप्लॉइड, डिप्लॉइड एंड ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर ऑफ ए फर्टिलाइज एम्ब्रियो सेक हमें यहाँ पे सीक्वेंस में बताना है. तो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर सिनर्जिड्स हुआ, एंटीपोडल सेल्स हुए, है ना, आपका गैमीट हुए, सब हैप्लॉइड होते हैं. डिप्लॉइड हो गया, फ्यूजन के बाद जाइगोट बन गया, और ट्रिप्लॉइड हो गया हमारा एंडोस्पर्म. सो लेट अस सी द सीक्वेंस. सो सिनर्जिड्स, जाइगोट एंड योर एंडोस्पर्म, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो कि ट्रिप्लॉइड होता है. सो दिस विल बी योर करेक्ट आंसर. मूविंग अहेड, ये क्वेश्चन हमारा 2013 में पूछा गया है. पेरिस्पर्म डिफर्स फ्रॉम एंडोस्पर्म इन. सो यू कैन सी डायरेक्ट क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी बुक से ही पूछे गए हैं. सो एनसीईआरटी को प्लीज ध्यान से रीड करेंगे, एंड अभी हम आपको लिंक भी देंगे. यू कैन चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड यू कैन प्रैक्टिस क्वेश्चंस. सो पेरिस्पर्म डिफर फ्रॉम एंडोस्पर्म इन. सो पेरिस्पर्म क्या है? पर्सिस्टेंट न्यूसिलस है. न्यूसिलस की प्लॉइडी क्या है? दैट इज द डिप्लॉइड. एंडोस्पर्म इज ट्रिप्लॉइड. सो दिस इज बीइंग अ डिप्लॉइड टिश्यू विल बी योर आंसर. ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ डाइकोटिलिनस प्लांट बियर्स फ्लावर बट नेवर प्रोड्यूसेस फ्रूट एंड सीड. एक डाइकोट प्लांट है, ठीक है, क्या नहीं बना रहा? सीड नहीं बना रहा, फ्रूट नहीं बना रहा. द मोस्ट प्रोबेबल कॉज फॉर द अबव सिचुएशन इज, प्लांट फ्रूट भी नहीं बना रहा, सीड भी नहीं बना रहा, ऐसा कैसे हो सकता है? द कंडीशन विल बी डायोशियस, है ना, यानी कि मेल फ्लावर अलग प्लांट बॉडी पे, फीमेल अलग प्लांट बॉडी पे है. तो यहाँ अगर हमारा स्टेमिनेट कंडीशन है, यानी कि स्टेमन है, इस पे पिस्टल नहीं है, तो वो हमारा क्या नहीं बनाएगा? वो हमारा सीड्स और फ्रूट नहीं बनाएगा. So plant is dioecious and bear only staminate flowers. So this will be your answer. So that's all from my side. Thank you so much for watching this video. And I just wanted to convey that a link in the description is given to you of the open test series, जहाँ पे आप क्लिक करके हमारे एक्स्ट्रा मार्क्स पोर्टल पे जाएंगे और वहाँ पर आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं. That's all. Have a nice day.